Very good evening to all. Welcome to my entrepreneurship class. Today's topic is Trend Spotting, chapter number 1, class 12. My dear students, first of all, I would like to tell you what is the meaning of trend. As an introduction, trend, you can say, as we say that what trend is going on, it may be the style, fashion, or the taste of the society. What trend is going on? Taste, fashion, style get continuously change in the society because change is the law of nature. That's why we can say every person living in the society wants something new, different, continuously. So they change their style, fashion, etc. That is called trend. Spotting means to find out what type of fashion, style, taste is going on in the market. What type of things a customer want to have. Next, now we are talking about generation of ideas. On the basis of the trend, we generate the idea. What is to be done? What can be done? What different can be done? What new can be done? How it can be done? How can be different? How can be something different from others? This all the things are the idea, and we generate the idea to develop something, to create something, to give a product, to give a service, a facility to the consumers. These all types of ideas, how to compete to the competitors, etc. Now, what we will do is the idea, and this idea, how can the idea generated? These are the idea fields from where we can generate the ideas. Idea fields. First of all, idea can be generated from natural resources. How? A number of things, a number of facilities can be created from the nature. Number of products can be manufactured with the help of the resources available in the nature. A number of services can be given also. For example, this marker is made of plastic, but you may see a number of pencils, pen also, markers may be also made of wood. Service. Have you ever listened camping? जो कैंपिंग होती है आप जंगल में लगा सकते हैं, फॉरेस्ट बाउंड्री की, whatever the protection measures you can take, you have taken protection measures आपने ले लिए wild animals से, और फिर आपने घने जंगलों में पेड़ों के नीचे कैंपिंग की, रात में कैसा लगता होगा, दिन में, ठीक है। इस तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज, बीच पर फैसिलिटीज देनी शुरू की आपने, नेचुरल रिसोर्सेज, और आप इन जो हमारी नेचुरल रिसोर्स है उसके बेस पर क्या जनरेट कर सकते हैं, क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। A number of medicines are being prepared, are being manufactured by many medicine companies. Ayurveda, Ayurvedic medicines, बहुत सारी चीजें हैं। In many things, गंगा जल is also used, यूज किया जाता है। मिनरल वाटर्स में भी यूज कर सकते हैं आप, मिनरल वाटर कि ठीक है पीने के लिए भी है और पूजा के लिए भी काम आ सकता है। When we are talking about number of products are there related to water, drinking water like Bisleri, Aqua, etc. तो आप गंगा जल भी यूज कर सकते हैं for drinking as well as for worship, ठीक है। A number of ideas can be generated with the help of natural resources. Next idea field is existing product and service. कि एक आइडिया और जनरेट हो सकता है किससे, कि कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और सर्विस है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन और क्रिएटिविटी के बेस पर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो पहले से ही अवेलेबल है उसमें कुछ नया कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस मार्कर यू हैव यूजिंग, और मार्कर के साथ पीछे डस्टर भी इसमें अटैच्ड हो, तो नया हो सकता है, कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं। तो एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विसेज में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके देना, एडिटिंग करना, मॉडिफिकेशन करना, क्रिएटिविटी के साथ कुछ देना, या उसको चेंज करके रिप्लेस करके उसके जैसा ही कुछ लेकर आना,
ये कहलाता है आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से कैसे आइडिया जनरेट किया जा सकता है, दैट इज आइडिया फील्ड। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडिया फील्ड, मार्केट ड्राइवन आइडियाज। सम आइडियाज मे बी देयर ऑन द बेस ऑफ व्हिच वी कैन क्रिएट अ मार्केट ड्राइवन आइडियाज, कि मार्केट बढ़ जाए, ऐसा आइडिया सोचो यार ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर हो जाए। तो ये भी आइडियाज हैं कि मार्केट को कैप्चर करना। फर्स्ट डिमांड, आप अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड देखें, जहां डिमांड है वहां सेल करें, या फिर आप ये देखें कि मार्केट में किस चीज की ज्यादा डिमांड है, उस डिमांड को फुलफिल करें, कस्टमर जो डिमांड चाहता है। नेक्स्ट, सप्लाई एंड नेचर ऑफ कंपटीशन। many times it may happen that our competitors are not able to sell the product or are not able to make the right quantity of the product available in the market according to the demand, to fulfill the demand of the customers. कई बार ऐसा हो सकता है जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो उस प्रोडक्ट की राइट क्वांटिटी मार्केट में अवेलेबल ना करा जाए, कि जितने की मार्केट में डिमांड है वो क्वांटिटी अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं। तो ये आपके लिए, एक बिजनेसमैन के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आप उस प्रोडक्ट की सप्लाई करना शुरू कर दें। ठीक है, साथ के साथ कॉम्पिटिटर्स का स्टाइल ऑफ सेलिंग कैसा है, आप उनसे डिफरेंट सेल्स टेक्निक्स यूज करना शुरू कर दें। तो नेक्स्ट, कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मार्केट ड्राइवन आइडियाज, लोअर कॉस्ट पर जब हम सेल करते हैं तो सिंपल सी बात है, स्मॉल कट इन द कॉस्ट, स्मॉल और यू कैन से लोअर कट इन द कॉस्ट में अट्रैक्ट टू द कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट। तो कॉस्ट को कट किया जाए ताकि रीजनेबल प्राइस पर राइट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, राइट क्वालिटी, वी कैन से राइट क्वांटिटी राइट क्वालिटी बोथ कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। इट विल ड्राइव द आइडिया मार्केट। तो जब आप कम कॉस्ट पर, सही प्राइस पर, जेन्युइन प्राइस पर राइट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इन राइट क्वांटिटी सेल करेंगे तो सिंपल सी बात है मार्केट इंक्रीज हो जाएगी। मार्केट इंक्रीज, मार्केट ड्राइवन आएगा। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडिया फील्ड, ट्रेडिंग रिलेटेड आइडिया। Many businessmen or entrepreneurs, instead of manufacturing themselves, start to purchase and sell to others in different things like agencies, wholesaler, retailers, etc. बनाने और बेचने से अच्छा है, कुछ लोग क्या करते हैं, अलग अलग नए नए तरीकों से, नए नए स्टाइल से, नई नई पॉलिसीज के साथ परचेज करना और बेचना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं बल्क में मैन्युफैक्चरर से और अपना स्टैंप लगाते हैं, वो कंडीशंस होती हैं परचेज सेल की और मैन्युफैक्चरर की, अपना स्टैंप लगाया, अपनी ब्रांड नेम लगाया और आगे सेल कर दिया। और सेल अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू, पर्सनल सेलिंग, ऑनलाइन सेलिंग, पर्सनल सेल कर रहे हैं डोर टू डोर, ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, किसी कंपनी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ मिलकर सेल कर रहे हैं, ये ठीक है। तो ये ट्रेडिंग रिलेटेड आइडियाज है। या इंपोर्ट करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर देना, दूसरी कंट्री से खरीदा और किसी और को बेच दिया, या यहीं से खरीदा आपने एक्सपोर्ट कर डाला। तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंट्रापोर्ट, यू कैन से a number of trading related ideas are there. Next, service related ideas, service sector ideas, service related ideas, इसका बहुत ज्यादा स्कोप चल रहा है। तो आपके माइंड में आइडिया है कि क्या बिजनेस करूं, कोई आइडिया नहीं आ रहा, कैसे आइडिया जनरेट करूं। तो आइडिया जनरेट करने के लिए एक आइडिया फील्ड पर जाओ, आप सर्विस सेक्टर आइडियाज हैं, उससे आपको पता चलेगा दुनिया भर की सर्विसेज दी जा रही हैं। A number of services are being offered to the consumers or to the society, and I tell you, the society and the consumers are being get attracted with these types of services. ये सर्विसेज कैसी हैं? टूरिज्म का स्कोप बढ़ता जा रहा है। आज ही आप किसी से कहें कि केवल 1000 रुपीज में आपको कुल्लू मनाली घुमा के लाएंगे, या ठीक है वैष्णो देवी घुमा के लाएंगे, या जहां भी है, ठीक है 1000 रुपीज में सामने वाला सोचेगा अच्छा 1000 में खाना पीना सब हाँ ठीक मिलेगा। तो सर्विस रिलेटेड आइडियाज बहुत सारे हो गए हैं। या ठीक है, कभी आप राजस्थान गए हैं? नहीं सर। वहां का खाना खाया? नहीं सर। देखे हैं ऊँट वगैरह कैसे होते हैं? नहीं सर। सर्विस रिलेटेड आइडियाज, तो आज क्या करते हैं, एक कंपनी आ गई है, आप कोई बिजनेसमैन हो सकता है, एंटरप्रेन्योर, जो क्या सोचता है राजस्थान जैसा क्रिएट करके जो भी एटमॉस्फेयर है, एक
खेत लिया, फील्ड और यू कैन से पीस ऑफ लैंड परचेज करके, सैंड इकट्ठा करके, वहाँ पर 2-4 ऊँट रख के, कैमल रख के, और बिल्कुल वैसे ही हट वगैरह बनाकर 2-4 लोगों को बैठा कर बिल्कुल वैसा ही राजस्थानी जैसा माहौल बना के, और वहाँ पर रेस्टोरेंट सर्विस, बिल्कुल सेम खाना आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा देखो घर में घुसने के बाद पता नहीं चलता कि बाहर क्या है। इन द सेम मैनर सेम एटमॉस्फेयर कैन बी क्रिएटेड इन अ फील्ड लाइक राजस्थान, जयपुर। तो सर्विस रिलेटेड आइडियाज हो सकते हैं आपके, जैसे हमने बताया टूरिज्म वगैरह का हो सकता है, या फ्री होम डिलीवरी हो गया, टिफिन सर्विसेज भी हमने बताया था, रेस्टोरेंट सर्विस बताया था, होटल सर्विसेज, सैलून, स्पा सर्विसेज, ब्यूटी पार्लर सर्विसेज एटसेट्रा। एंड नंबर ऑफ सर्विस आइडियाज देयर। सर्विसेज बहुत सारी हो चुकी हैं, आप कोई भी सर्विस दे सकते हैं। आपको बता दें स्टार्टिंग में अभी तो इन्वर्टर्स यूज होने शुरू हो गए बेटा, पहले क्या होता था जनरेटर सर्विस दी जाती थी, इन्वर्टर्स नहीं होते थे लोगों के, पावर कट लगता था नाइट में, इवनिंग में, या तो कभी भी कट लगे तो जनरेटर सर्विस जो प्रोवाइडर्स होते थे वो यूनिट्स के हिसाब से कि घर में कितनी यूनिट्स चलेंगी, मींस टू से बल्ब, फैन, नंबर ऑफ बल्ब, नंबर ऑफ फैन, नंबर ऑफ ट्यूबलाइट्स के अकॉर्डिंगली वो कनेक्शन करके जाते थे और उसके वो चार्जेस लेते थे। तो वो जनरेटर सर्विस मींस अ नंबर ऑफ सर्विसेज कैन बी गिवन टू द सोसाइटी। नेक्स्ट आइडिया फील्ड, क्रिएटिव एफर्ट्स। क्रिएटिव मींस चेंजिंग न्यू मेथड्स, न्यू सर्विसेज, न्यू प्रोडक्ट्स, डिफरेंट थिंग्स, न्यू करना। ये आप कुछ नया सोच सकते हैं कि नया क्या करना है, नया क्या क्रिएट करना है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट अदर कंसिडरेशन। अदर कंसिडरेशंस मींस कि सोसाइटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस नेचर के लिए क्या कर सकते हैं। वुमेन एम्पावर, चिल्ड्रंस एजुकेशन एम्पावर, तो उस फील्ड में आप कुछ नया कर सकते हैं। तो ये हो गए आइडिया फील्ड्स। इन आइडिया फील्ड्स की हम बात करते हैं कि उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है आपका ट्रांसफॉर्मिंग एन आइडिया इनटू अपॉर्चुनिटी। जब जैसे ही आपके सामने में कोई आइडिया आया, वो आइडिया आपके लिए अपॉर्चुनिटी है या नहीं, वो तो आप अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इसमें, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म करना अपॉर्चुनिटी में वो कैसे होता है। जब माइंड में कोई आइडिया आया तो हम उसके बारे में रिसोर्सेज देखते हैं कि उस आइडिया को रियलिटी में चेंज करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। रिसोर्सेज को अरेंज करना और उससे फिर प्रोडक्ट या सर्विस जनरेट करना ही और मार्केट में सेल करके बेनिफिट लेना ही कहलाता है ट्रांसफॉर्मिंग एन आइडिया इनटू अपॉर्चुनिटी। दिस इज एम्स। नेक्स्ट वी आर चेकिंग अबाउट आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट। असेस मींस जज करना कि कितना वो सही है कितना नहीं, कि आइडिया कितना सही है या वो वास्तव में अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। कई बार होता है माइंड में आइडिया है, अच्छा आइडिया है, लेकिन क्या उस आइडिया से रिलेटेड अभी हमने बताया था रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे या नहीं, गवर्नमेंट परमिशन मिलेंगी नहीं मिलेंगी, कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, क्या कस्टमर रियलिटी में परचेस कर लेगा, क्या इतना इकोनॉमिक बेनिफिट देगा जाएगा। अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। आइडिया आया मन में तो आप देखें कि उस आइडिया से रिलेटेड वास्तव में कोई प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो सकता है नहीं हो सकता है, क्या वो वास्तव में प्रोडक्ट मार्केट में है या नहीं है, और आप उसे क्रिएट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उससे रिलेटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है। नेक्स्ट वी आर चेकिंग अबाउट एप्लीकेशन एंड यूज। व्हाटएवर द प्रोडक्ट्स यू आर प्रिपेयरिंग और सर्विस यू आर जनरेटिंग, व्हाट आर द यूजेस ऑफ दैट वेरी प्रोडक्ट। कई बार एक प्रोडक्ट के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। यूज को हम कह सकते हैं अप्लाई करना, एप्लीकेशंस, और उसको अलग अलग जगह हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा यूजेस होंगे, जितने ज़्यादा आप उसके एप्लीकेशंस कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा मार्केट अच्छी होगी। क्योंकि आजकल लोग क्या चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वॉच का एग्जांपल हम देते हैं हमेशा टेक्निकल, नॉट ओनली टू सी द टाइम बट आल्सो टू सी द डेट एटसेट्रा। स्मार्ट वॉच वी हैव टेकन नाउ, वी आर हैविंग स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच में वी कैन मेक अ कॉल, नेट सर्विसेज एटसेट्रा। कि अब जितने यूजेस बढ़ते जा रहे हैं एप्लीकेशन, हम वो देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में कितने यूजेस हैं, कितने एप्लीकेशंस हैं, तभी वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनकर आएगी। नेक्स्ट, लेवल ऑफ ऑपरेशंस। Whatever the product you have decided or the service you have decided, we check the level of operation at what level the entity, business entity or economic entity will work. इस एंटिटी लेवल पर वर्क करेंगे, ऑपरेशंस करेंगे।
स्मॉल स्केल पर, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल, कितने स्केल पर प्रोडक्शन चलना है, क्योंकि ये डिपेंड होता है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड रहेगी। नेक्स्ट, कॉस्ट अपॉर्चुनिटी। यदि कभी कभी कैसा होता है कॉस्ट ज्यादा आ जाती है और कस्टमर उस शायद हो सकता है उस कॉस्ट को पर जो प्राइस बना कॉस्ट के अकॉर्डिंग उस पर प्राइस पर परचेज ना करे, तो हो सकता है कि लॉस हो जाए। तो हमें कॉस्ट भी देखनी पड़ती है कि अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड द यूजेस एप्लीकेशंस, व्हाट इज द कॉस्ट being occurred, what the cost is being occurred to manufacture any product. Next, competition. कंपटीशन जब हम बात करते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स की क्या टेक्निक्स हैं सेल करने की, किस तरीके से सेल कर रहा है, व्हाट एट व्हाट प्राइस दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट, किस क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट को अवेलेबल करा रहे हैं, क्वांटिटी में वो उनकी सेल्स टेक्निक्स, उनके प्राइसेस, उन सबको स्टडी किया जाता है। यदि आपकी टेक्निक्स, प्राइस, कॉस्ट उन सबसे ठीक हैं तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी। नेक्स्ट, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज। It may happen many times a number of updated technologies are available in the market and someone may have the outdated technology machine. अब अपडेटेड टेक्नोलॉजी मशीन से क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स का जो आउटपुट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स आउटपुट इंक्रीज हुआ तो एक लिमिट तक कॉस्ट डिक्रीज होगी, क्योंकि आप जब ज़्यादा स्केल पर प्रोडक्शन करना चाहेंगे उस मशीनरी से, अपडेटेड मशीनरी से, तो रॉ मटेरियल उतना ही बल्क में परचेज करेंगे। जब हम कोई चीज़ बल्क में परचेज करते हैं हमें कॉस्ट कम आती है, इस तरीके से हमें वहाँ मशीनरी भी कॉस्ट कम आएगी। और जो अपडेटेड टेक्निकल मशीनरीज होती हैं उसमें क्या होता है, हमें लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो लेबर कॉस्ट कम आती है। साथ के साथ शायद वो, अब देखा जाता है कि असेसमेंट कर रहे हैं क्या हमारे माइंड में जो आइडिया आया और जो हम कोई चीज सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली मशीनरी मार्केट में अवेलेबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये चेक करना होता है। या हम कोई प्रोडक्ट सोच रहे हैं उस प्रोडक्ट में किस टाइप की टेक्नोलॉजी है, क्या वो अवेलेबल होगी या नहीं होगी। कई बार क्या होता है हमारी कंट्रीज की जो हमारी कंट्रीज में यदि कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, दूसरी कंट्री में है, तो हमारी कंट्री और दूसरी कंट्री के जो टर्म्स कंडीशंस हैं या बिजनेस से रिलेटेड फ्रेंडशिप है, टर्म्स कंडीशंस वो अलाउ करती भी हैं और अभी नहीं करती हैं कि हम फॉरेन से वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लें या परचेज कर लें। तो आपको अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी देखनी होगी, चाहे वो प्रोडक्ट में हो या अपडेटेड टेक्नोलॉजिकल मशीनरी हो। नेक्स्ट, एनुअल टर्नओवर एंड प्रॉफिट मार्जिन। देखिए कोई भी आइडिया जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी जब होगी जब उसमें आपके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वायबिलिटी, इकोनॉमिक वायबिलिटी होगी जब आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल हो रही हैं और आप कोई अच्छी टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर, और आपको रीजनेबल जो आपके एफर्ट्स हैं, रिस्क है, उसके लिए अवार्ड देकर जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं मार्केट असेसमेंट की। मार्केट को असेस करना, मार्केट को असेस में समझना कि क्या मार्केट है हमारे प्रोडक्ट के लिए या नहीं है। फर्स्ट, डिमांड। जब हम डिमांड की बात करते हैं तो यहाँ पर डिमांड देखना है कि मार्केट में जो हमने प्रोडक्ट बनाया उसके नंबर ऑफ बायर्स कितने होंगे, कितने लोग उसको परचेज कर लेंगे, और हमारे बायर्स की नेचर क्या होगी, हमारे बायर्स किस टाइप के होंगे। ठीक है, वो नेचर क्रेडिट बेसिस पर होंगे, कैश बेसिस पर होंगे, अर्बन या रूरल एरिया के होंगे, तो डिमांड कहाँ होगी, कितनी होगी, या टाइप कितने होंगे, मतलब कंज्यूमर होगा या रिटेलर या होलसेलर या इंडस्ट्रियल। तो मार्केट में असेसमेंट करना कि उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी रहेगी। ठीक है, आपको अपने प्रोडक्ट की डिमांड चेक करनी होती है। आफ्टर दैट, सप्लाई एंड नेचर ऑफ कंपटीशन। सप्लाई एंड नेचर ऑफ कंपटीशन कि हम उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे अपनी सप्लाई से। जो हमारा कॉम्पिटिटर है क्या उसके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, यदि है तो क्या वो उस डिमांड के अकॉर्डिंग, मार्केट में डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सप्लाई कर पा रहा है। यदि नहीं कर पाता है तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम उसकी सप्लाई करेंगे प्रोडक्ट की और हमारे पास कस्टमर आएंगे। एक एग्जाम्पल देते हैं सीधा सीधा। One customer is going to a shop named Raj and Sons.
द कस्टमर रिक्वायर्स 20 pieces of any product, but the shopkeeper says that he has only 10 units or 10 pieces. Now the customer goes to another Mohan and Sons, another shop, Mohan and Sons. There are a number of pieces available, number of hundreds, you can say, in the number of varieties. The customer's requirement is fulfilled by Mohan of 20 units with a variety of products or choice, you can say. So we can say that Ram was not in the position to fulfill the demand of the market or the customer. In such the situation, Mohan has fulfilled the demand, has supplied according to the demand, so he has the good market. तो आपका कॉम्पिटिटर जो राम था, मोहन का कॉम्पिटिटर, राम के पास इतनी गुड्स अवेलेबल नहीं थी कि वो मार्केट को सप्लाई कर पाए या कस्टमर्स को सप्लाई कर पाए। इसमें उसका प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ। किसका सेल हुआ? जिसके पास गुड्स अवेलेबल हैं सप्लाई के लिए और कॉम्पिटिटर से ज़्यादा हैं और सही टेक्निक है, प्राइसेस हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्ट कई बार डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। यदि कॉस्ट कम है, मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसकी कॉस्ट कम है और प्राइस कम है, तो आपके प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होगी, अदरवाइज नहीं। आपको कॉस्ट और प्राइस अपने कॉम्पिटिटर्स के प्राइस से मैच करना होता है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट इनोवेशन एंड चेंज। When we are talking about project innovation, तो बात करते हैं हम कि मार्केट को असेस करने के लिए सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है कि आपके प्रोडक्ट में क्या चेंजेस हैं, क्या नई नई चीज़ें हैं, तभी आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट में इजीली एक्सेप्ट किया जाएगा। क्योंकि मार्केट हमेशा मीन्स कस्टमर हमेशा, सोसाइटी हमेशा नया चाहती है, चेंज चाहती है, कुछ ना कुछ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, टाइप्स ऑफ ट्रेंड। टाइप्स ऑफ ट्रेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न रीड ट्रेंड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर फॉर यू। First, read trend. Second, top trend. Third, watch trend. Fourth, think trend. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। आपको इसमें से केस स्टडी अक्सर जरूर मिलती है एग्जाम में देखने को। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट रीड ट्रेंड। आपको ये पता है कि ट्रेंड कैसे पता चलना है, ये टाइप्स ऑफ ट्रेंड है कि हाउ यू विल गेट व्हाट ट्रेंड इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, क्या फैशन चल रहा है, क्या स्टाइल चल रहा है, तो ये रीडिंग के बेस पर पता चलता है। जब बात करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ के, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स, इनकी रीडिंग्स के बेस पर आपको पता चला कि सोसाइटी में अच्छा ये भी ट्रेंड चल रहा है, आज अच्छा ये भी ट्रेंड चलता है। जैसे आपने देखा कि ठीक है आजकल रामलीला में इतनी भीड़ लगी हुई है, क्या रामलीला अभी भी चलती है? इतनी भीड़ लगती है कि लाखों लोग जाते हैं। तो कुछ लोगों ने क्या सोचा, चलो ऐसी कमेटी बना डालते हैं कि रामलीला स्टार्ट कराएंगे हर साल। अच्छा मेले में इतनी भीड़ लगती है, वहाँ तो फिर ठीक है झूले भी होते होंगे, और झूले में फिर झूले होते होंगे, आपके गिफ्ट्स वगैरह होते होंगे, टॉयज होते होंगे, हाँ खूबसूरत होते हैं। अच्छा मीन्स जब आप न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स इस तरीके की चीज़ें रीड कर रहे हैं तो आपको लोगों के टेस्ट का पता चलता है,
फैशन स्टाइल, दैट इज कॉल्ड रीड ट्रेंड। तो जब केस स्टडी में पता चल जाए ना कि कोई रीडिंग वर्ड आ रहा है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, तो रीड ट्रेंड है। नेक्स्ट टॉक ट्रेंड। टॉक ट्रेंड क्या होता है? When someone talks to his friend, colleagues, relatives, etc. और बात करते करते उसके माइंड में कोई आइडिया आए, अच्छा उसे पता चले अच्छा ये चल रहा है, इससे ये हो सकता है, मीन्स कोई माइंड में उसको पता चले कि ये फैशन चल रहा है आजकल, दो लोगों के बात करने से पता चले, तीन लोगों से बात कर रहे हैं, चाहे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, किसी से भी बात करके पता चले कि यार ये फैशन चल रहा है आजकल सोसाइटी के अंदर, तो ये आइडिया क्रिएट करेगा उसके माइंड में कि क्या फैशन चल रहा है, उसी के हिसाब से बनाना है। जैसे हमें बच्चे बताते हैं, नई नई हमें चीज़ें बताते हैं बच्चे कि सर मार्केट में आजकल ये चल रहा है, सर आजकल तो बच्चे ऐसी चीज़ें पहनते हैं, सर बच्चे आजकल ये खाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, सर आजकल बर्थडे चल रहा है, बर्थडे में पता नहीं क्या लगा लेते हैं सिर के ऊपर, क्या लगा लेते हैं सिर के ऊपर, हमें पता ही नहीं था। एक स्पिनर चला था कि सर बच्चे आजकल वो स्पिनर घुमाते रहते हैं, कहते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उस टाइम हमें पता नहीं था। लेकिन क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके बेस पर कुछ एंटरप्रेन्योर्स के माइंड में आइडिया आता है, बात और कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये ट्रेंड स्पॉटिंग का जो मेथड है, ये बात करने से है। नेक्स्ट, वॉच ट्रेंड। जब वॉच की बात है ना, एक वर्ड याद रखना है आपको, विजिट। विजिट, क्योंकि एक जगह बैठकर आप कभी ध्यान से, वॉच मींस नॉट सी, देखना नहीं, बहुत ध्यान से देखना होता है वॉच। वॉच ट्रेंड में क्या होता है, आप किसी चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं और वो केवल एक जगह नहीं होता, विजिट करके होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कहीं गए, आपने कुछ सोसाइटी को ऑब्जर्व किया, लोगों को ऑब्जर्व किया। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन गया स्कूल के बाहर बैठा कुछ वेट करने के लिए, अपने कज़न का, उसने देखा बच्चे आ रहे हैं और जो उनकी ट्राउजर्स हैं, दे आर वियरिंग द ट्राउजर्स, रिंकल कुछ कहते हैं उसको, मुझे तो मालूम नहीं, जो ऊंची होती हैं, पैरों से ऊंची हैं, बच्चों को ज़्यादा मालूम होता है इन चीज़ों का। तो पैरों से जो होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी ऊंची हैं, कपड़े छोटे हो गए, क्या बच्चा लंबा हो गया। फिर उसने क्या किया, वो रेस्टोरेंट में गया, कुछ दिन बाद खाना खाने, वहाँ भी देखा। अब उसने क्या किया, इतने अलग अलग प्लेसेस पर गया, विजिट की और ऑब्जर्व किया। टू वर्ड्स को ध्यान रखना है, विजिट एंड ऑब्जर्व। ऑब्जर्व किया कि आजकल ये फैशन चल रहा है, स्टाइल चल रहा है कि जो जीन्स है ना, ये ट्राउजर्स है, लो वेस्ट तो है ही, लेकिन पैरों से भी ऊंची हैं। तो उसने क्या किया, अपनी फैक्ट्री में लगाई और बनाना, वैसे ही बनाना शुरू कर दिया, उसकी सेल इंक्रीज हो गई। तो वॉच ट्रेंड में क्या होता है, विजिट्स करते हैं कई बार, या विजिट करने से हमें एक जगह, दो जगह, तीन जगह देखा और हमने ऑब्जर्व किया, तो ट्रेंड का पता चलता है। थिंक ट्रेंड, मैनी टाइम्स बेस्ड ऑन द मैनी इंफॉर्मेशन। कई बार हमारे माइंड में ऑब्जर्वेशंस होती हैं खूब सारी, कि हमने वहां देखा, वो देखा, या हमारे माइंड में पहले से नॉलेज होती है। नॉलेज पर ध्यान देना, इंफॉर्मेशंस प्लस नॉलेज, ये आप पॉइंट इसमें टू वर्ड्स रख लें। थिंक ट्रेंड में इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेजेस होती है, उनके बेस पर आप मेंटल एक्सरसाइज करते हैं और थिंकिंग करते हैं। ये जनरली सेल्फ होती है, आपको बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, और आप मन में सोच रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या ये ट्रेंड चल रहा होगा आजकल, तो जरूर चल रहा होगा, ये तो जरूर चल रहा होगा। दैट इज कॉल्ड थिंक ट्रेंड, कि आपने अपने माइंड से सोचा कि आजकल ऐसा चल रहा होगा, क्योंकि मुझे ऐसी इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं, या मुझे ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं, या मेरी ये नॉलेज है, या मेरी फोरकास्टिंग है, पहले से फ्यूचर में देखना कि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, चलने वाला है। दैट इज कॉल्ड थिंक ट्रेंड। I hope that you have got all the topic. If still there is any query, you can leave a comment or reply on WhatsApp. Give a thumbs up to like the video and subscribe the channel to have first mover advantage. Thank you. Have a nice day.